हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एजुटॉक। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, that is they have to find slope of a line and inclination of a line. Then in last video we have started the straight line, in that definition of locus, how to find equation of locus, as well as we have solved the exercise 5.1 depending on this. Then here today we study that is the inclination of a line and slope of a line, as well as perpendicular line, acute angle between two intersecting line, how to find this. Then first one is straight line. The simplest definition of straight line is that the simplest locus in a plane is a line. Then next is, if we consider this as our x-axis, this as our y-axis, then this line intersect x-axis at a point. कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? a0 पे, मतलब x इंटरसेक्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है? x-axis पे 0 होता है, एंड दिस लाइन इंटरसेप्ट y-axis यहाँ पे a इंटरसेक्ट करती है y-axis को, y-axis पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी y की वैल्यू कितनी है? b है. देन ए लाइन पैरेलल टू x axis हैज नो x इंटरसेप्ट. Then the remark is that a line parallel to x-axis has no x intercept. x intercept कब होता है? जब वो लाइन x को इंटरसेप्ट करेगी. लेकिन if you consider a line जो parallel x-axis को, तो वो कहाँ पे भी x को इंटरसेप्ट नहीं करेगी. Then it has no x intercept. Same thing, a line parallel to y-axis. y-axis को parallel line consider करेंगे, वो also does not intercept. y को कहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. Then it has also no y intercept. The next one is that the inclination of a line, and this is the important point. The smallest angle made by a line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise sense is called the inclination of a line. That is, to find the slope of a line we have to use this. That means if this is our x-axis, this is our y-axis, then the angle made by this line with the positive direction of x-axis, this is positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, and it measured in anti-clockwise direction. That is how much angle made by this line made by angle with the positive direction of x-axis. If you consider this as theta, तो इस लाइन से कितना एंगल क्रिएट है? विथ x-axis को थीटा का एंगल क्रिएट है. देन this is the inclination of line with the positive x-axis and measure in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise and this is clockwise direction. Okay, this is clockwise direction, this is anti-clockwise direction. That is the inclination. And if the inclination is given, then slope is found by using the formula m is equal to tan theta. That is, tan of that angle is the slope of this line. Okay, तो अगर inclination given है तो slope कैसे find out करते हैं? Tan of whatever the angle, that is the inclination angle. ठीक है. Then next पॉइंट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. यहाँ पे इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के बाद, मतलब ये लाइन ने कितना एंगल मेड किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इफ यू टेक tan of that angle, then this is a slope of a line. Okay, here we are right. That is slope of a line. मतलब क्या? inclination of a line is theta, then tan of that angle. And if it exists, अगर इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट टर्म है, then is called the slope of a line. and ये कैसे डिनोट किया जाता है? m is equal to tan theta. मतलब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है. अगर इंक्लिनेशन एंगल गिवन है तो स्लोप क्या होता है? m is equal to tan of that angle. एंड अगर नेक्स्ट वन इज दैट, अगर इंक्लिनेशन एंगल नहीं गिवन है and if we have provided 2 points, then how to find slope. तो ये जो tan थीटा है वो किस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर 2 पॉइंट मालूम है तो y2 minus y1 डिवाइडेड x2 minus x1, ये फॉर्मूला यूज करके भी आप स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल गिवन है तो tan ऑफ दैट एंगल. अगर इंक्लिनेशन नहीं है गिवन, तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो यूजिंग y2 minus y1 डिवाइड x2 minus x1, इसका जो भी रेशो होगा वो किसकी वैल्यू होगी? स्लोप की वैल्यू होगी, एंड वही वैल्यू tan थीटा की वैल्यू के इक्वल ही होगी. ठीक है, तो आप स्लोप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जो आपको गिवन है, अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेगा, 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेगा टू फाइंड द स्लोप. द नेक्स्ट वन इज दैट द रिमार्क, two lines are parallel if and only if they have the same slope. Then we solve the one example depending on inclination of angle. Find the slope of a line whose inclination is 60 degree. तो slope of a line find out करना है जिसका inclination 60 degree गिवन है, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है? थीटा की वैल्यू गिवन है. अगर हमें inclination angle गिवन है तो slope क्या होता है? m is equal to tan of that angle. Okay, that is tan theta, and theta की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60 डिग्री. मतलब क्या होगा? tan 60 डिग्री. tan 60 मतलब
मतलब क्या है, साइन 60 डिवाइडेड कॉस 60 का वो रेशियो है, एंड साइन 60 क्या होता है, √3/2, कॉस 60 क्या होता है 1/2। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन लेंगे तो क्या होगा, दैट इज √3/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज √3, मतलब tan of 60 is √3, that is slope is √3. Okay, in this way, if inclination is given, directly use this formula. The second one example is that find the slope of a line which passes through the point A point and B point. मतलब यहाँ पे 2 points is given, तो slope find out करने के लिए आपको कौन सा formula use करना पड़ेगा, y2 minus y1, that is m is equal to, if inclination is not given, then we use the formula y2 minus y1 divided x2 minus x1 का formula use करना पड़ेगा। तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y2 minus y1 मतलब 7 minus 4, ओके 7 minus 4 डिवाइडेड x2 minus x1 मतलब 5 minus 2, 5 minus 2, तो इसका रेशो कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 3, ओके 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1। तो आफ्टर टेकिंग द रेशो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू कितनी 1 है, दैट इज द स्लोप इज 1। इन दिस वे आइदर यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब अगर 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, एंड अगर डायरेक्टली इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन देन डायरेक्टली फाइंड tan ऑफ दैट एंगल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देन next is that next one example is here also same thing we have to use, find the slope of a line which passes through the origin and the second point is a of -4 4, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, सेम थिंग यहाँ पे 2 पॉइंट इज गिवन, लेकिन 1 पॉइंट क्या है ओरिजिन है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट हमें 0 0 कंसिडर करने पड़ेंगे, एंड सेकंड क्या है -4 4। तो द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय क्या है फॉर्मूला y2 minus y1 x2 minus x1। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 4, एंड सेकंड पॉइंट को ओरिजिन का पॉइंट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। तो यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज, तो यूज स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए क्या होता है y2 minus y1 डिवाइड x2 minus x1, दिस आर x1 y1, दिस आर x2 y2, ओके। तो 0 y2 minus y1 मतलब 0 minus 4 डिवाइडेड x2 minus x1 मतलब 0 minus minus plus 4, तो इसका रेशो होगा -1, देयरफॉर स्लोप कितना है यहाँ पे -1 है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट परपेंडिकुलर लाइंस, दैट इज व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 and m2, okay, that is two lines are perpendicular to each other if and only the product of their slope is -1। कब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। देन वी यूज दिस रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल। देन कंसिडर करते हैं वन एग्जांपल, शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो कब ए बी परपेंडिकुलर होगी बी सी को, अगर ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट इज गिवन, तो वी नो दैट पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं y2 minus y1 डिवाइडेड x2 minus x1 के रिलेशनशिप। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंसिडर करते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी m1 m2 है। देन ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप बाय यूजिंग दी ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी के 2 4 है, तो x1 y1 है, x2 y2 है, तो क्या फार्मूला है y2 minus y1 डिवाइडेड x2 minus x1, ओके। हमें फार्मूला क्या है m1 स्लोप के लिए y2 minus y1 डिवाइड x2 minus x1, तो y2 क्या है 4 minus 2 मतलब 2 डिवाइडेड x2 minus x1 दैट इज 1 दैट इज 2, तो m1 स्लोप की वैल्यू कितनी 2 है। तो सेम तरीके से m2 स्लोप भी फाइंड आउट करना है bc के लिए, तो b के कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया x1 y1, यानी अब ये क्या हो गया x2 y2, तो 5 minus 4 मतलब कितना 1 डिवाइडेड 0 minus 2 मतलब कितना -2, तो ये होगा -1 अब। तो m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू -1 अब है, तो टेक की लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, तो क्या होगा 2 इंटू -1 अब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा -1, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, मतलब दो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो लाइन है ए बी एंड बी सी देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 है, देन दे आर perpendicular to each other. Then next one example is that here A, B, C points are given vertices of a triangle ABC. Find slope of the altitude draw from A. Okay, find the slope of the altitude draw from A. So triangle ABC is given. Slope of the altitude triangle ABC is given. The slope of the altitude draw from A. तो find out करते A, B, C. तो A, B स्लोप फाइंड आउट करते हैं, देन एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा
-1 होगा। तो m1 स्लोप फाइंड आउट करते हैं, एंड अगर AB का स्लोप एंड BC का स्लोप, दैट इज AB एंड BC आर परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा, -1 ही होगा। देन वी यूज दिस रिजल्ट। तो कंसिडर स्लोप ऑफ द लाइन BC। ओके, वी कैन फाइंड आइदर AB का फाइंड आउट कर सकते हैं या BC का फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन BC, तो B के कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो y2 - y1 डिवाइड x2 - x1, तो 5 - 3 डिवाइडेड -2 -2, तो कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाय 4 -1। अब द अल्टीट्यूड ड्रॉप फ्रॉम A इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ए से जो अल्टीट्यूड है वो BC को परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज AB इज परपेंडिकुलर टू BC। लेकिन यहाँ पे वी वेरीफाई दिस, एज परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो सेकंड का स्लोप m2 कंसिडर करते हैं, m1 तो हमने फाइंड आउट किया है, एंड प्रोडक्ट लेते हैं -1, तो उससे हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी। देन दे आर एज दे आर परपेंडिकुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना है, -1 है, तो m1 इंटू m2 इज -1, तो m1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी m1 की वैल्यू, दैट इज m1 इज, हमने m1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ओके, हमने m1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो थी -1, m1 इज -1 अब, ओके, हमने m1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो थी -1। अब एज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, तो m1 की वैल्यू -1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो 2 से मल्टीप्लाई, -2 को ट्रांसफर करके, तो m2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस इंटू -2 दैट इज 2, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब सेकंड लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, as they are perpendicular to each other. The second thing is that angle between the intersecting line, अपने perpendicular के angle का product देखा है अभी, that is if two lines are perpendicular then product of their slope is -1। लेकिन अगर two lines are just intersecting है, वो perpendicular नहीं है, then how to find acute angle between them। तो देखते हैं थ्योरम, if theta is the acute angle between non vertical lines having slope, जिसका slope m1 and m2 है, then that is acute angle is determined by using this formula tan theta is equal to m1 minus m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 m2। अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है, लेकिन जस्ट इंटरसेक्टिंग है तो एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखते हैं एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन दिस। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप 3 एंड -2, जिसका स्लोप 3 है -2 है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा की टैन थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड क्या प्रोवाइड है, स्लोप गिवन है, हैविंग दिस स्लोप, 2 स्लोप्स आर गिवन, मतलब दिस एज m1 स्लोप, दिस एज m2 स्लोप। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, तो tan थीटा इज m1 माइनस m2, मॉड्यूल्स में लिखना है 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड 1 प्लस m1 इंटू m2 है -6, लेकिन +1 है तो -5, इसका रेशो होगा -1, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेते हैं तो क्या होता है, +1 होता है। मतलब tan थीटा कितना है, 1 है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है थीटा की जहां पे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, किस कौन से एंगल पे, tan थीटा एक्यूट एंगल डिटरमाइन करना है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, फॉर टू डिटरमाइन द एक्यूट एंगल वी आर यूज द फॉर्मूला मॉड्यूल्स ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 इंटू m2 का रिजल्ट यूज किया है। लेकिन एक्यूट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट tan थीटा 1 होता है, तो कौन सा एंगल पे होता है, दैट इज 45 डिग्री के, दैट इज 45 डिग्री पे, मतलब π/4 पे। ओके, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 45 डिग्री और π/4, then tan theta is equal to 45, that is theta is 45 degree, that is what is the acute angle between the line having the slope is 45 degree। तो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट हियर इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज, तो एंगल गिवन है एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, वन लाइन का स्लोप गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। आपको अगर 2 लाइन्स का स्लोप गिवन है एंड एंगल इज रिक्वायर्ड देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एज वेल एज इफ एंगल बिटवीन 2 लाइन इज गिवन, मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है एंड स्लोप ऑफ 1 लाइन इज गिवन, यू हैव टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, मतलब m2 की वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हैविंग स्लोप m1 m2, तो क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, माइनस m2 प्लस 1 प्लस m1 की 1/2 m2 हो जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। मतलब ये क्या होगा, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ
45 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मतलब 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 मतलब 1/2 m2। तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। tan ऑफ 45 अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस 2 m2 होल डिवाइडेड 2। यहाँ पे भी क्या होगा 1 दैट इज 2 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m2 होल डिवाइडेड 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 1 है। लेकिन वी नो दैट व्हेन वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूल्स, ओके मॉड्यूल्स निकालते तो वी गेट प्लस माइनस 2 वैल्यू मिल जाती है। मतलब इसका अगर मॉड्यूल्स निकालेंगे तो इस 1 की कितनी वैल्यू होगी +1 एज वेल एज -1। तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज ऑफ m मिलने वाली है। तो क्या लेते हैं मॉड्यूल्स निकालते हैं तो 1 माइनस 2 m2 डिवाइडेड 2 प्लस m2 इज इक्वल टू +1 एंड सेकंड कौन सी है 1 माइनस 2 m2 डिवाइडेड 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। तो हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो क्या होगा अगर इफ वी सॉल्व दिस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 1 माइनस 2 m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर ये दिस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा 1 माइनस 2 m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ओके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव की टर्म है ना लेफ्ट में राइट में ट्रांसफर करते हैं यानी लेफ्ट की ये लेफ्ट की राइट में एंड ये राइट की लेफ्ट में ट्रांसफर। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा m2 प्लस 2 m2 मतलब ये हो जाएगा 3 m2। तो m2 की वैल्यू कितनी है ये 1 माइनस 2 -1 होगा तो 3 m2 मतलब m2 की वैल्यू होगी -1/3। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी मिली है -1/3। ओके 1 वैल्यू ओके m2 की वैल्यू कितनी मिली है यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे -1/3। तो सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 2 m2 डिवाइडेड 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 है। तो -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 2 m2 इज इक्वल टू -2 माइनस m2। तो -m2 को और दिस प्लस -2 m2 को लेफ्ट में राइट में ट्रांसफर करते हैं दिस -2 को राइट लेफ्ट में। तो क्या होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -m2 प्लस 2 m2। तो एडिशन कितनी होगी 3 इज इक्वल टू कितना है बच्चा है 2 m2। तो m2 की वैल्यू कितनी है 3। therefore m2 is -1/3 as a one value and or second value is m2 is equal to 3। मतलब हमें 2 values of m2 मिली है। therefore there are m2 is equal to 3 or -1/3। there are 2 lines which satisfy the given condition। तो given condition satisfy करने वाली 2 lines है such that दोनों लाइन के बीच में एंगल 45 डिग्री है as well as it satisfies this condition। ओके ऐसे there exist 2 lines कि जो ये कंडीशन satisfy करती है जिसका स्लोप है 3 और 1/3। therefore यहाँ पे आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि स्लोप ऑफ अ लाइन तो इफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। अगर 2 पॉइंट्स फॉर्म इज गिवन तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप कितना होता है -1 होता है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज द इफ 2 लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर बट जस्ट दे आर इंटरसेक्टिंग then the angle between them is acute angle between them is determined by using this formula that tan theta is equal to m1 minus m2 divided m plus 1 divided tan theta is equal to m1 minus m2 divided 1 plus m1 m2। यहाँ पे आपको sometimes one slope and theta की वैल्यू गिवन होगी जैसे कि यहाँ पे गिवन है that is acute angle is given and one slope is given और आपको 2 slope is given and it is required to find acute angle between them। okay in this way you can solve the example depending on this। then in next video we take the examples depending on this exercise। in next video we take the example depending on this point that is the exercise 5.2। then video को like करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। thank you for watching this video।